Hello friends, myself Bhumika Parmar. In last video we had seen about our 8th chapter comparing of quantities. From today we are going to start the new chapter. The title of this chapter is rational numbers. तो ये जो रेशनल नंबर है उसका मेन या इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग इस स्टैंडर्ड में देखेंगे. जो उसका एडिशन है वो हम लोग 8th स्टैंडर्ड में देखेंगे. सो हम लोग देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन पार्ट. यू हैव बिगन योर स्टडी ऑफ नंबर्स बाय काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू. द नंबर्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस वर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स. They are 1, 2, 3, 4 up to so on. By including 0 to the natural numbers, we got the whole numbers. वो हम लोग सिक्स्थ स्टैंडर्ड में देख चुके हैं. होल नंबर्स किसको बोलते हैं? It means 0, 1, 2, 3 up to so on. The negatives of natural numbers were then put together with whole numbers to make up integers. 1 से लेके n तक जाए तो वो हो गए हम लोगों के पास नेचुरल नंबर. उसमें एक 0 ऐड कर दे तो वो हम लोग जाते हैं होल नंबर्स की ओर. तो वो सेट मिलता है हम लोगों को होल नंबर्स का. उसमें नेगेटिव नंबर्स हम लोग डाल दें तो वो सेट हो जाएगा इंटीजर्स का. अब we thus extend by number system from natural numbers to whole numbers and from whole numbers to integers. अब integers के बाद हम लोग extend करेंगे rational numbers की ओर. तो rational number की ज़रूरत या need क्यों हुई? You were also introduced to fractions. Fractions हम लोग देख चुके हैं. These are numbers of the form numerator upon denominator. हम लोग ये जानते हैं फ्रैक्शन इस फॉर्म में होता है. Where the numerator is either 0 or a positive integer and denominator is always a positive integer. वो हम लोग फ्रैक्शन में देख चुके हैं. You compared two fractions, found their equivalent forms and studied all the 4 basic operations of addition, subtraction, multiplication and division on them. वो हम लोग कर चुके हैं. In this chapter we shall extend the number system further. We shall introduce the concept of rational numbers along with their addition, subtraction, multiplication and division operations. Need for rational numbers. तो rational number की need जो है ज़रूर जो है वो क्यों हुई? Earlier we have seen how integers could be used to denote opposite situations involving numbers. For example, if the distance of 3 km to the right of a place was denoted by 3, then the distance of 5 km to the left of the same place could be denoted by -5. वो हम लोग जानते हैं. If a profit of rupees 150 was represented by rupees 150, then loss is denoted by minus या negative sign. There are many situations similar to above. ऐसी कुछ situations और हैं जैसे कि you can represent a distance of 750 above sea level as 3/4 kilometer. Can we represent 750 meter below sea level in kilometer? क्या वो हम लोग जो हैं सी लेवल यानी कि जो तरह होती है समुद्र की, तो उस सपाटी से हम लोग जो है नीचे जाएंगे तो उसका मेजरमेंट आप लोग क्या दिखा सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में. तो उसको क्या हम लोग -3/5 से लिखेंगे? यस, we can see -3/5 is neither an integer nor a fractional number. तो फ्रैक्शनल नंबर्स में हम लोगों ने जो भी देखे थे वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए थे. अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं वो -3/4 है यानी कि नेगेटिव फ्रैक्शन नंबर है. तो वो नहीं ना तो इंटीजर है ना तो फ्रैक्शन नंबर है. We need to extend our number system to include such numbers. तो इस टाइप के नंबर्स जो हैं उसको हम लोगों को इंक्लूड करने के लिए नई नंबर सिस्टम जो है उसको इन्वेंट करने की नीड जो है वो हुई है. तो उसके लिए हम लोगों ने रैशनल नंबर जो है वो इन्वेंट किए हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स जो है वो क्या है?
द वर्ड रेशनल अराइजेस फ्रॉम द टर्म रेशियो। रेशनल नंबर जो है वो कौन से टर्म से आया है? रेशियो से। यू नो दैट रेशियो इज लाइक 3:2, कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3/2, वो हम लोग देख चुके हैं। 3 and 2 are natural numbers. Similarly, the ratio of two integers p and q, where q not equals to 0. q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. It means p is to q. p is to q can be written in the form of p by q. तो उसको हम लोग p by q फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं. This is the form in which rational numbers are expressed. तो ये p by q फॉर्म जो है वो रैशनल नंबर का हम लोग जो है उसको डिफाइन करते हैं. अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर, ये डेफिनेशन है हम लोगों के पास रैशनल नंबर की, यहाँ से यहाँ तक की. अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q, where p and q are integers and q not equals to 0. अब हम यहाँ पे q not equals to 0 क्यों ले रहे हैं या q 0 क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अगर हम लोग q 0 लेंगे तो ये जो पूरी टर्म है p by q उसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. अब जब डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा तो उस टर्म को हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे. इसलिए हम लोग ऑलवेज रैशनल नंबर्स के लिए q not equals to 0 की कंडीशन लिखते ही है. इस कंडीशन के बिना आपकी डेफिनेशन जो है वो आधी अधूरी है. Thus 4/5 is a rational number where p is equals to 4 and q is equals to 5. Same way -3/4 is also a rational number. -3 is equals to p and q is equals to 4 are integers. You have seen many fractions like 3/8, 4/8, 1 and 2/3, etc. These all fractions are rational numbers. Also about decimals, तो डेसिमल के लिए अगर हम लोग चलते हैं तो 0.5 है, फिर 2.3 है, तो उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 5/10. 2.3 को 23/10, फिर 0.333 को 333 डिवाइडेड बाई 1000. तो ये सारे जो है वो अगेन हम लोगों के पास रैशनल नंबर्स यानी कि p by q के फॉर्म में हम लोगों के पास मिल जाते हैं. अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इन p by q the integer p is the numerator and integer q not equals to 0. मैंने बोला ना ये कंडीशन जरूरी है. So q not equals to 0 is the denominator. Thus in -3/7 -3 is numerator and 7 is denominator. सेम वे आप लोगों को क्या करना है कि 5 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिसका आप लोग न्यूमरेटर्स लिखेंगे, डिनोमिनेटर्स लिखेंगे एंड उसमें सबसे पहला कौन सा होगा? न्यूमरेटर नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव. उसके बाद न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव. थर्ड नंबर इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव एंड लास्ट वन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव. तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस जो कंडीशन दी गई हैं उसके ऊपर आप लोगों को एग्जाम्पल्स लिखने हैं. बाकी का जो है हम लोगों के पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स जो हैं उसमें रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस. तो उसमें सारे जो हैं वो आ जाते हैं, यानी 0, -1 मतलब नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड फ्रैक्शनल्स. तो वो सारे कहाँ में, कौन से सेट में आ जाएंगे? रैशनल नंबर्स में. सो रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस. नेक्स्ट जो टॉपिक है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, तो वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.